Hello, I'm Rajiv Mittal, life coach and trainer. In today's episode of Change Your Mind to Change Your Life, Ritika and me are going to discuss an issue because of which a lot of you get stressed out. हमने जैसे लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि कुछ एरियाज हैं जिनको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनके लिए टाइम डिवोट करना चाहिए और अपना टाइम लगाना चाहिए। ऐसे ही ये काम तो मैंने फॉलो करा, लेकिन आगे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी अलग डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। सो हाउ डू आई टेक टाइम आउट फॉर दो स्टेक होल्डर्स, और रादर हाउ शुड आई मैनेज दो स्टेक होल्डर्स? To recap, in the first episode we had talked about various stakeholders that are there in our life. Stakeholders माने वो लोग जिनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप भी उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना चाहते हैं। ये कौन कौन है? फर्स्ट वी सेड इज़ आवर फैमिली, दैट्स पेरेंट्स एंड if you're married, your spouse and children. Second we said is your organization where you work for. Third we said there's a circle of your friends and your extended family, which we call the social circle. And fourth is you yourself. Now before we start talking about how to resolve this challenge, let's understand the nature of these stakeholders. First of all, their expectations from you are not aligned with each other. माने कि अगर आप एक के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो, इट इज़ ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ द अदर थ्री. फॉर एग्जाम्पल, if you for some reason are staying likely to contribute more to your organization, you work longer hours, वो longer hours कहाँ से आएंगे? At the cost of either your family, your social circle or yourself. Second, they all follow the philosophy of दिल मांगे more, meaning there is no limit to their expectations. आप जब ज़्यादा यहाँ तक करते हैं तो their expectation यहाँ हो जाती है, and it goes on like that. For example, let's say you have a sales job and in 1 month you do 110% or 115% of your target. What is your boss's expectation for the next month? कि आप वापस 100 करें? No, now he would like you to do even more than that. So I agree, I have experienced the same. तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शुरू हुआ था कि once a month हम लोग कैच अप करेंगे, पर 3-4 महीनों के बाद शुरू हो गया कि हमें ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए कि once a month की जगह once a fortnight, even once a week शुरू करना चाहिए. रितिका, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, वेरी रेलिवेंट टू ड्राइव होम द पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स. जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप है, दैट इज़ ऑफ बार्टर अरेंजमेंट. बार्टर मतलब क्या हुआ? लेन देन, गिव एंड टेक है. द मोर यू गिव फॉर देम, द मोर ग्रेटर द चांसेस दे विल डू समथिंग फॉर यू. इट मे नॉट बी completely fair, but that's the way life is. For example, if unfortunately your friend is going through some, let's say, medical problem, and you provide him support by meeting him in the going to the hospital and spending time with him, I'm sure in case you need some help, he will always be available for you. Now friends, coming to the issue of how to resolve this or balance this requirements of the stakeholders, let me first of all say the situation is very complex and also dynamic in nature. उसके बारे में ज़्यादा बात करने से पहले I will like to show you first a wall hanging that we have in house. वो मैसूर से लेके आए थे कई साल पहले. वुड में इनले वर्क है और जो उसमें सीन है वो आप सब लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा. ये है वो वॉल हैंगिंग जिसमें ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से सीन है, जिसमें अर्जुन जो है रथ पे सवार हैं, श्री कृष्ण उनके साथी हैं, उनके हाथ में आप देख रहे हैं घंटल है और विप है और रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं. इसी कारण जो है रथ बहुत तेज़ी से दुश्मनों की सेना को चीरते हुए जहाँ उन्हें जाना होता अर्जुन को वहाँ पहुँच जाता था. अब सवाल ये है कि आपका जो लाइफ का रथ है, चैरियट जो है लाइफ का, उसमें कितने हॉर्सेस लगे हुए हैं? I alone. तो यस, आप अकेले हॉर्स हैं और आपके रथ के सारथी कितने हैं? I think 3. My organization, my family and the social circle. Let's say 4 actually, because आप भी एक स्टेक होल्डर हो, तो अब 4 सारथी हो गए
और जैसा कि हमने उस सीन में देखा था, हर एक सारथी के हाथ में, जैसे श्री कृष्ण के भगवान के हाथ में था, एक विप होता है, और वो जब भी जो हॉर्स है उनके डायरेक्शन ही मानेगा तो सारथी जो उसको विप कर देता है। अभी क्या होगा, क्योंकि ये चारों जो सारथी बैठे हुए हैं, रथ चला रहे हैं, वो तो अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं आपको, और जैसे ही अगर आप एक के डायरेक्शन फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बाकी तीन जो हैं आपको हॉर्स को विप करेंगे। हमारी लाइफ में विपिंग कैसे होती है? बाय द स्टेक होल्डर्स मेकिंग कंप्लेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंड से नहीं मिल पाते हैं बहुत दिनों तक, तो उनकी कंप्लेन होती है कि अरे आप तो मिलते ही नहीं हो, बहुत बड़े आदमी हो गए हो। आप जिस दिन अगर वर्क प्लेस पे, ऑफिस में ज़्यादा दिन रुकते हैं, तो आपके फैमिली में वाले कंप्लेन करते हैं कि यू हैव नो टाइम फॉर अस। अब सोचिए कि अगर ये जो जर्नी है ऐसी चलती रहे कि घोड़े पर बार बार विप पड़ते रहेंगे, तो क्या होगा? थोड़ी दिन में द हॉर्स विल गेट स्ट्रेस्ड आउट एंड प्रॉब्ली कोलैप्स, एंड विच इज़ वॉट I think some of us may be experiencing in our life also occasionally. Absolutely, this is exactly what happens. I feel that I'm being pulled in all directions. मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं सबको कैसे हैंडल करूँ और सबको कैसे मैनेज करूँ. It really gives me a lot of stress. अब देखते हैं कि इसको कैसे, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. Please keep this in mind that I am only going to give you a framework to look at the problem which they are facing. Specifics जो हैं आप ही को ढूंढनी पड़ेंगी. सबसे पहले एज यूजुअल हमें थोड़ा अपना माइंडसेट में चेंजेस लाने पड़ेंगे. फर्स्ट माइंडसेट चेंज जो आप कोर्स में बोलूँगा मैं, आई कैन नॉट मेक ऑल द स्टेक होल्डर्स हैप्पी ऑल द टाइम. ये बहुत ज़रूरी है. क्यों? हमने पहले भी कहा था जैसे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेक होल्डर्स की, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती हैं. तो वो तो इससे इम्पॉसिबल कि आप सबको खुश रख सकते हैं. सेकेंड, योर ओन हैप्पीनेस इज़ पैरामाउंट, माने कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसमें ये मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि व्हेन वी से हैप्पीनेस, वी आर नॉट योर हैप्पीनेस. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट सेल्फिश हैं, नॉट एट ऑल. आपकी हैप्पीनेस के ब्रॉडली स्पीकिंग दो सोर्सेज होते हैं. एक तो होते हैं जो आपको डायरेक्ट हैप्पीनेस मिलती है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर आपको या कुछ इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसे आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है. यू सी अ मूवी और यू स्पेंड टाइम विद अ डियर फ्रेंड ऑफ योर्स, दे ऑल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सेकेंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है जो हमें मिलती है जब हम औरों के लिए कुछ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if you make something very special for your spouse, I'm sure you feel very happy about it, or you spend time to help your child learn something new, that also gives a lot of happiness and satisfaction. Or let me take one more example. Our parents are not well and you go and spend time with them to take care of them, that will also give you a lot of happiness and satisfaction. Or even in the workplace, कोई आप एक चैलेंजिंग जॉब करते हैं, बहुत कोई नई चीज़ करते हैं, उसमें भी आपको हैप्पीनेस मिलती है. बट योर हैप्पीनेस हैज़ टू बी पैरामाउंट. तीसरी चीज़ है, एक माइंडसेट और बदलना पड़ेगा कि हमें लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. वो क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा था कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं से आपको कुछ मिलने की चांसेस हैं, तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट, क्योंकि जब आप एक के लिए ज़्यादा करेंगे तो वो स्टेक होल्डर से आपको ज़्यादा मिलेगा, एंड नेचुरली जब आप दूसरे स्टेक होल्डर कम कर रहे होंगे तो उससे आपको कम मिलेगा. इसको दिमाग में रखते हुए ही हमें अब आगे बढ़ते हैं. आई विल नाउ show you, or I have created a picture of this situation which is, and on that picture we will discuss how to resolve your problem that you are facing. So friends, I have tried to draw graphically the picture of these 4 stakeholders: self, organization, social circle और family. और मैंने एक उनको छूता हुआ बाहर आउटर रेड सर्कल ड्रॉ करा हुआ है जो कि है मैक्सिमम उनका जो आपसे रिक्वायरमेंट है. दैट तो इज़ जस्ट रूल्ड आउट कम्प्लीटली, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा. क्या हो सकता है? जैसे अलग अलग स्टेज पे लाइफ के अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, अपने जो आपके पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से, यू मे बी समवेयर लाइक मे बी अ ग्रीन सर्कल और मे बी अ ऑरेंज सर्कल एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने हिसाब से, और कि मेरे लिए जो है मेरी अपनी हैप्पीनेस कहाँ से ज़्यादा आ रही है इस स्टेज ऑफ लाइफ में, और इसको अकॉर्डिंगली बार बार इसको देखें और पीरियडिकली इसको अपने जो कमिटमेंट्स हैं या ऑब्लिगेशंस टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बढ़ाते और कम करते रहें. दिस इज़ द ओनली
सोल्यूशन पॉसिबल, अगर आप मेरे से पूछें तो? आई थिंक ये बहुत मुश्किल है एलोकेट करना कि किसके लिए मैं कितना टाइम एलोकेट करूँ. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी वीकेंड्स पे काम आ जाता है. सो इवन दो इफ आई मेड सम प्लान्स विद माई फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड और विद माई फैमिली, अगर काम आ गया तो फिर मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा और वो काम करना ही पड़ेगा. तो अब बाद में कोई कंप्लेन करे कि तुमने तो प्रॉमिस करा था कि वीकेंड्स आर फ्री, बट ऐसे नहीं होता. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. गुड एग्जाम्पल अगेन रितिका. इसी तरह से जैसे मैंने भी कहा था कि सिचुएशन जो बहुत डायनेमिक है, यानी कि बदलती रहती है, तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ बीच बीच में डेवलपमेंट्स होंगे जो यू विल हैव टू चेंज वॉट एवर द एलोकेशन यू हैव मेड. फॉर लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर फैमिली लाइफ. सपोजिंग आपके डॉटर या सन के कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इवन शॉर्ट एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो उन कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए हो सकता है यू हैव टू गिव मोर टाइम टू हर and less time maybe for your work or yourself or your social circle. So I think this is a great way of looking at the problem, because in different phases of life you might have to allocate different time slots for different activities. So very well put. Yes, Ritika, it has to be changed in different phases of your life. It may sound very complex and difficult, but actually it is not so, because you have already done in the past. Let me take two examples which most of us would have gone through already. जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तब केवल 3 ही स्टेक होल्डर्स थे. वन वॉज योर फैमिली, सेकेंड वॉज योर फ्रेंड सर्कल एंड थर्ड यू योर सेल्फ. लेकिन जैसे ही आपने जॉब शुरू करा, वी हैव वन मोर स्टेक होल्डर, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट स्टेक होल्डर टुक अवे अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर टाइम, ऑलमोस्ट 9 to 10 hours a day. और वो कहाँ से आया था टाइम? यू रिड्यूस इट आइदर वन फ्रॉम योर सोशल सर्कल, फ्रेंड से मिलना टाइम बहुत कम हो गया, प्लस मे बी पार्टली योर्स, पार्टली फ्रॉम दी फैमिली. उसके बाद सेकेंड स्टेज कब आया? व्हेन यू गेट मैरिड. अभी क्या होगा कि फैमिली में स्पाउस के एडिशन से थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हमारे को, और ये शायद भी टाइम कहाँ से कम हुआ होगा? फ्रॉम योर सोशल सर्कल. So this kind of changes you have to make constantly in life. If you are aware of the framework, you are aware that this needs to be done, you can do it proactively before you get stressed out. Not only this, advantage ये है कि अगर आप पहले से prepare होंगे next phase of life के लिए, आप अपने स्टेक होल्डर्स को पहले से ही बता सकते हैं कि लोग अभी ये चेंज होने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके चिल्ड्रन हैव कम इनटू द क्लास 12th और 11th 12th, जहाँ पे उनको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, एंड यू फील you need to provide them lot of emotional and educational support in terms of learning, etc. Obviously you will probably share it with your family members or your social circle that look, for the next 1 or 2 years I may not be spending so much time with you as I was doing in the past. So पहले से करने में advantage रहता है, नहीं तो suddenly we all this situation comes in and we get stressed out. So दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जब हम सबको खुश करने के लिए चलते हैं तो नेचुरली हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतना टाइम ही एलोकेट नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह से वी लूज आवर हैप्पीनेस, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, एंड देन इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद अदर्स, एंड अगेन वी आर बैक ऑन स्क्वायर वन. So friends, to conclude, first of all you need to make these 3 mindset changes. 1, I cannot make everyone happy all the time. 2, my own happiness is of paramount. And 3, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. और ये चेंज करने के बाद, if you sit down periodically and look at that graph which we had drawn earlier, कि किस तरह से मुझे अपना टाइम को एलोकेट करेंगे, I am sure friends you will find that 1, your life is much more in your control, your stress has gone down, you are happier and definitely more successful in life. तो with this friends we come to the end of this episode. फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में, जहाँ एक और आपके लाइफ के चैलेंज के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, चीयर्स.